Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to discuss the topic nervous system. तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ किस टॉपिक के बारे में और किस चैप्टर के बारे में nervous system. So let's start. Write the following words on small pieces of paper and act them out one by one. अब इसमें बोला है कि एक पीस में एक पेपर का पीस लो और उसमें ये सारे वर्ड्स को लिखना है और आपको एक्ट करना है. बैलेंसिंग, टेस्टिंग, क्राइंग, लाफिंग, स्नीजिंग, स्मेलिंग, breathing, thinking, reading, and memorizing. So, which of these activities can you control? Now, the question is saying that among all these words, which activity can you control by your own? The nervous system is the control center of the human body. So the nervous system, it controls the human body. It is the control center of the human body. Which system? Nervous system. So nervous system is the control center of the human body. It comprises three important parts, and the nervous system comprises three important parts. What are that? The brain, spinal cord, and nerves. So, what are the three parts? Brain, spinal cord, and nerves. The nervous system enables us to carry out activities such as breathing, blinking, memorizing, reading, eating, thinking, smelling, and so on. और जो नर्वस सिस्टम है वो हमें हमारे क्या हेल्प करता है? वो हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में, ब्लिंकिंग में, मेमोराइजिंग में. इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर नर्वस सिस्टम्स हेल्प अस टू डू. Brain. So the brain communicates with the rest of the body through the spinal cord and the nerves. अब ब्रेन कैसे कम्युनिकेट करता है हमारे बॉडी से? कैसे कम्युनिकेट करता है? थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. आपने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो ब्रेन का क्या काम होता है? इट receives the message and gives command. Isn't it? ब्रेन क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और फिर कमांड देता है कि हमें क्या करना चाहिए. Isn't it? The brain is made of three main parts, and the brain is made up of three parts: the cerebrum, the cerebellum, and the medulla oblongata, और द ब्रेन स्टेम. सो मेड्यूला ओब्लोंगेटा को हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम. The cerebrum or cortex is the largest part of the human brain. अब जो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो किसका होता है? सेरिब्रम का होता है. और कॉर्टेक्स, वी कैन से इट सेरिब्रम और वी कैन से इट कॉर्टेक्स ऑल्सो. ओके, और ये जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. Its main functions include planning, thought, reasoning, problem solving, movement, emotions, actions, memory and speech. और इसके क्या क्या functions होते हैं? Planning thoughts, reasoning, problem solving, movement, emotions, actions, memory and speech. So all these activities are carried out by cerebrum. The cerebrum has two halves. अब cerebrum के two halves होते हैं. Scientists believe that the right half helps us think about abstract things such as music, colors and shapes. अब जो है कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ब्रेन का सेरिब्रम के टू हाफ्स होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो जो राइट साइड पार्ट जो ब्रेन का होता है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ उसमें हमारे अंदर रहती है? म्यूज़िक, कलर्स एंड शेप्स होती हैं. While the left half
हेल्प्स अस विथ मैथ्स, लॉजिक एंड स्पीच। और जो लेफ्ट पार्ट जो होता है सेरिब्रम का, उससे हम क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं? मैथ्स, लॉजिक एंड स्पीच। ऑल राइट। It is also believed that the right half of the cerebrum controls the left side of the body. और क्या साइंटिस्ट लोग बिलीव करते हैं कि जो हमारे ब्रेन का, दैट मीन्स हमारे सेरिब्रम का जो राइट हाफ है, पार्ट है, वो हमारी लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हाफ पार्ट है ब्रेन का, वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। फाइन। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is cerebrum. All right. Now we will discuss about cerebrum. The cerebellum performs functions such as regulation and coordination of movement, posture and balance. तो cerebrum इसका क्या फंक्शन होता है? It regulates, it coordinate, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का रेगुलेशन और इनका कोऑर्डिनेशन, ये इसको परफॉर्म करता है, एज वेल एज पॉस्चर एंड बैलेंस, इसको भी ये परफॉर्म करता है। इट टेल्स अस हाउ टू वर्क ऑल द मसल्स टुगेदर, एंड ऑल्सो ये हम मसल्स को मैसेज देता है कि किस तरीके से जो हमारे मसल्स हैं, वो सारे मसल्स किस तरीके से एक साथ फंक्शन परफॉर्म करें। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? इट इज़ लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन। It is also called the little brain because it is only 1/8 the size of the cerebrum. और cerebrum को हम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कैन से इट लिटिल ब्रेन ऑल्सो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे ब्रेन का जो है 1/8 साइज होता है। हमारे जो पूरी ब्रेन है उसका ये 1/8 साइज होता है, इसलिए इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आया हमारे ब्रेन का, वो है मेड्यूला ओब्लोंगेटा और ब्रेन स्टेम। सो द मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक वाइटल लाइफ फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, फूड एंड ब्लड सर्कुलेशन। और जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इट परफॉर्म्स द एक्टिविटी, और वी कैन से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग फूड एंड ब्लड सर्कुलेशन। इन सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये बाकी का जो ब्रेन का जो पोर्शन है उसको वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री मसल्स, the ones that work automatically such as the heart and the stomach। और साथ ही जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। कौन सी इनवॉलेंट्री मसल्स हुई? कहाँ की हुई? हार्ट एंड स्टमक की इनवॉलेंट्री मसल्स को ये कंट्रोल करता है। ओके फाइन स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स कनेक्टिंग द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये थिक बंडल है, नर्व्स का ये थिक बंडल है जो कि हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है, ब्रेन से हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है। The vertebral column or backbone protects the spinal cord from damage। और जो बैकबोन जो होता है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड को, वो ये प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, चोट लगने से, नुकसान पहुंचने से ये प्रोटेक्ट करता है। अब आया पॉइंट नर्व्स। नर्व्स क्या होता है? नर्व्स स्प्रेड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू फेस, आइज, ईयर्स, आइज, नोज एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो नर्व्स होती है वो क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड है, इजंट इट? पूरी बॉडी में, चाहे वो फेस हो या आइज हो या स्किन हो, नोज हो, ईयर्स हो, कहीं पे भी नर्व जो है हमारी पूरी बॉडी में हमारे पाई जाती है। एंड इट फॉर्म्स द नेटवर्क, एक नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में बनाता है नर्व्स। दे फॉर्म ए वेब विद इन द बॉडी, वेब की तरह एक ये फैला रहता है। नर्व्स डिवाइड मैनी टाइम्स
as they leave the spinal cord so that they may reach all parts of the body। और इस तरीके से डिवाइड हो रखी हैं, ऐसे ही डिवाइड होती हैं कि हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में ये पूरी तरह से फैली रही हुई हैं। The thickest nerve is 2.5 centimeter thick and the thinnest is thinner than a human hair। और जो नर्व जो सबसे थिक जो नर्व का जो मेजरमेंट है वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर होती है। और जो थिनेस्ट नर्व है वो कितनी पतली होती है, जो एक ह्यूमन हेयर होता है वो उससे भी पतली होती है, थिनेस्ट उससे भी पतली। Each nerve is a bundle of hundreds or thousands of neurons or nerve cells। और एक नर्व में कितनी नर्व सेल्स होती हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड, जिसको कि हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूरॉन का, नर्व सेल का। इस तरीके से कि ये नर्व सेल होती हैं और ये 100 या 1000 नर्व सेल्स मिला के वन नर्व्स को बनाती हैं। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब जो नर्व्स हैं वो टू मेन टाइप्स की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर? टू मेन टाइप्स। सो सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। कौन सी टू नर्व्स हुई? सेंसरी एंड एज वेल एज मोटर नर्व्स। The sensory nerves take information from the sense organs and pass it to the brain through the spinal cord। अब जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन लेती है सेंस ऑर्गन से और फिर वो ब्रेन में पहुंचाती है। सपोज अब जैसे हमने हॉट वाटर में अपनी फिंगर रखी, ठीक है, तो वो जो सिग्नल है, हॉट वाला सिग्नल है, वो जो नर्व सेंसरी नर्व से वो कलेक्ट करके हमारे ब्रेन में पहुंचाएगी, ठीक है। द मोटर नर्व पास इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट द एक्शन गिवन बाय द ब्रेन टू मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मोटर नर्व्स का क्या वर्क होता है, वो हमें बताती है कि जो वाटर हॉट है और हमें हाथ वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपना हैंड रिमूव कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्विकली होती है, विद इन अ सेकेंड होता है, इसमें सेकेंड्स भी नहीं लगता है, फटाक से होती ना। जैसे ही हम हॉट चीज़ में हाथ डालते हैं तुरंत हम क्या रिस्पॉन्स देते, तुरंत हम हटाते हैं। तो सेंसरी नर्व्स ये इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन को पहुंचाती है और ब्रेन फिर हमें इन्फॉर्म करता है कि हम ये चीज़ है, हॉट है और हमें अपना हाथ हटाना। दैट मीन्स सेंसरी नर्व्स इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड मोटर नर्व्स कमांड टू द बॉडी। ये हमें कमांड देता है कि आप हटा लो हाथ, इजंट इट। नेक्स्ट आया रिफ्लेक्स एक्शन। ऑल राइट, रिफ्लेक्स एक्शन। What do you do if you touch a sharp or an extremely hot object? Can you control your response? अब ना क्वेश्चन इज सेइंग दैट अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट या हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप टच कर रहे हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा, क्या आप उसको रोक पाएंगे? क्या रोक सकते हैं? इज़ दिस पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अगर हम हॉट चीज़ में अपना हाथ रखेंगे तो हम थोड़ी ना उसमें रखे ही रहेंगे कि हमारा हाथ जल जाए। हम क्या करेंगे, हम फटाक से अपना हाथ रिमूव कर लेते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। सर्टन एक्शंस ऑफ अ बॉडी आर इंस्टेंटेनियस, मीन्स तुरंत, मतलब हम सोचते भी नहीं हैं और तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। हॉट चीज़ पे हमने हैंड रखा, तुरंत हम हटाएंगे, हम लोग को सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत हमने रिस्पॉन्स दिया। किसी शार्प चीज़ को टच करेंगे, फिंगर कट गई, तुरंत हम रिस्पॉन्स देंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, हाथ हटाएंगे, इजंट इट। वी डू नॉट नीड टू थिंक बिफोर डूइंग सच एक्शंस। हमें हटाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर हमने हॉट चीज़ में हाथ डाला तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अब हमको, अरे ये तो बहुत गर्म है, चलो अब हम अपना हाथ हटा लेते हैं, इतना भी नहीं हम सोचते हैं, तुरंत हमारा क्विक रिस्पॉन्स होता है। These involuntary actions are called reflex actions। और इसी टाइप पे एक्शंस को जो हम तुरंत जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट थिंक बिफोर ब्लिंकिंग आवर आइज, इट इज़ इंस्टेंटेनियस। अब हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, उसके लिए भी हम नहीं सोचते हैं, इजंट इट। अचानक से कुछ सामने आ गया, मेरी आइज़ ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर गई, तो हम इसके लिए भी नहीं सोचते हैं। सो ऑल दीज एक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स।
द ह्यूमन बॉडी है 5 सेंसेस। तो ह्यूमन बॉडी के पास कितनी सेंसेस होती है? 5 सेंसेस होती है। ये हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, इजंट इट? 5 सेंसेस होती हैं, सबको पता है। क्या क्या होता है? टच, स्मेल, टेस्ट, hearing and sight. So these are the 5 main senses of the human body. The skin, nose, tongue, ears and eyes are called the sense organs. और skin, nose, tongue, ear, eyes ये क्या है हमारी? These are all our sense organs. They help us understand and respond to the world outside the body. और ये जो 5 things है ये हमको वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, इजंट इट? द सेंस ऑर्गन सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। और इसी से, सेंस ऑर्गन से ही हम जो है ब्रेन में सिग्नल पहुंचाते हैं। लाइक अगर किचन में कुछ अच्छी सी चीज़ मम्मा बना रही हैं तो उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन वर्क करेगा? नोज़ करेगा ना। तो वो स्मेल नोज़ जो है वो ब्रेन तक पहुंचाएगा। अगर हमने हॉट वाटर में चीज़ रख दिया तो कौन सी है? स्किन जो है वो पहुंचाएगी सेंस कि ये हॉट वाटर है। अगर हमें कोई बहुत ही तेज़ साउंड सुनाई दे रही है तो किसके थ्रू सिग्नल जो है वो ब्रेन में पहुंचेगा? ईयर्स के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इनके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन को पहुंचाती हैं। अब हम कोई चीज़ खा रहे हैं, बहुत ही खट्टी है या मीठी है ना, हम टेस्ट किया तो कहाँ से वो सेंस हमारी जा रही है ब्रेन में? टंग से जा रही है, इजंट इट? तो ये सारी जो सेंस ऑर्गन्स है यही सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स। और फिर जो है ब्रेन इंटरप्रेट सिग्नल करते कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। इट मे सेंड मैसेजेस बैक टू द बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स। यस, तो ब्रेन ही फिर हमें बताती है किस तरीके से हमको रेस्पॉन्स देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज ये टॉपिक मेरा ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।